بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ذیشان بھی، اور دوسرے لڑکے جو بائک رائڈر ہیں ان کا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویسے بھی اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں دبئی میں، ٹریول کرتے ہیں روڈ پہ، تو آپ لوگ میپ یوز کرتے ہوں گے۔ آپ لوگ یہاں پہ روڈ پہ چلتے ہوئے لوکیشن لگاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی، تو میپ کا لازمی استعمال کرتے ہوں گے، کیونکہ روڈ پہ چلنے کے لیے یہاں پہ میپ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کون سا میپ؟ نارملی یہاں پہ لوگ گوگل میپ کو یوز کرتے ہیں، لیکن جو بائک رائڈر ہیں ان میں سے بہت سے کم لڑکے ایسے ہیں جو گوگل میپ یوز کرتے ہیں۔ بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ گوگل میپ کو یوز نہیں کرتے۔ سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے ایک دو دن کریں، لیکن جب ان کو پتہ چلے کہ گوگل میپ سے بھی بہتر یہاں پہ میپس ہیں، ایپلیکیشنز اویلیبل ہیں، تو ان کو پھر یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو انہی بہترین ایپس، انہی بہترین میپس کے متعلق بتاؤں گا جو یہاں پہ بائک رائڈرز اور روڈ پہ چلنے والے ٹیکسی والے جو میپ یوز کرتے ہیں وہ بھی سیم ہی ہے۔ آپ کو 4 سے 5 ایپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو گوگل میپ سے بھی اچھی ہیں اور جو یہاں دبئی میں زیادہ تر یوز ہوتی ہیں۔ تو بائک رائڈر کون کون سے ایپلیکیشن یوز کرتے ہیں اور کس طرح سے یوز کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یوز کر کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ چل کے روڈ پہ ٹریول کرنا ہے، زیادہ تر ہم نے گوگل میپ کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ اسی کو ٹریول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن یہ ٹریول کرتے ہوئے بہت زیادہ مشکل ہے اور راستوں کی سمجھ نہیں آتی اس کو یوز کرتے ہوئے۔ ایز اے بائک رائڈر میں بول رہا ہوں۔ اس کے اگر بات کروں تو یانگو بہت اچھی ایپلیکیشن ہے چلانے کے حساب سے بھی۔ اگر روڈ پہ ہم اس کا میپ لگاتے ہیں، اس پہ لوکیشن لگاتے ہیں، تو بہت اچھی ایپلیکیشن ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ یانگو کو یوز کرتے ہیں۔ وہ اس کی اپنی ایپلیکیشن بھی ہے، جس طرح کہ ان ڈرائیو بھی ہے، کریم بھی ہے، ٹیکسی بھی چلتی ہے اس کی، تو بہت اچھی ایپ ہے۔ ہم بہت سے بائک رائڈر بھی یانگو ایپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں۔ یانگو جو ہے وہ چلانے میں بہت زیادہ ایزی ہے۔ اگر میں اس کو پک اپ کے لیے لوکیشن لگاتا ہوں تو وہ مجھے واضح کر دیتی ہے۔ اگر رانگ اباؤٹ آ جاتا ہے اس کے متعلق، آگے اگر 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر آگے اگر ٹریفک جیم ہے اس کے متعلق بھی یانگو آگاہ کر دیتا ہے، اور چلانے میں بہت ایزی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا پرابلم ہے کہ نئے بندوں کو تھوڑا سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن بہت اچھی ایپ ہے۔ یانگو کو بھی استعمال کریے، بہت اچھی ایپ ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا ویز کی۔ ویز ایپلیکیشن میں خود یوز کرتا ہوں اور بہت ہی اچھی ایپلیکیشن ہے۔ میرے ایک دوست نے ویز کے متعلق بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ایپلیکیشن یوز کرو۔ اس میں جو ویز ایپلیکیشن جو ہے، جب ہم روڈ پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ راستے ایگزٹ کہاں پہ آ رہا ہے، ایون کہ ٹریفک جیم جس طرح سے یانگو بتاتا ہے اس طرح سے ویز بھی بتا دیتا ہے۔ اور ویز جو ہے یہ بھٹکتا نہیں ہے۔ یہ مثال کے طور پر یہ ایک پل ہے، پل کے اوپر بھی روڈ ہے اور نیچے یہ بھی روڈ ہے، تو اگر میں پل کے اوپر جاؤں تو بعض ایپلیکیشن جو ہیں وہ نیچے والے روڈ پہ مجھے شو کرتی ہیں، اور وہاں سے میں نے لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے اس کے متعلق بتانا سٹارٹ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے میرا سم ٹائم جو ہے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور بہت زیادہ پھر لمبا ٹریول کر کے یو ٹرن کر کے مجھے واپس آنا پڑتا ہے اپنے ٹریک پہ۔ تو ٹریک کو بھولنے نہیں دیتا ویز، ایسا نہیں کرتا۔ ویز اگر میں اوپر والے ٹریک پہ جا رہا ہوں تو وہ اوپر والے ٹریک پہ ہی رکھے گا، وہ نیچے آپ کو نہیں لے کے آئے گا۔ ایون کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں روڈ پہ ٹریول کر رہا ہوں، اوپر برج ہے، نیچے یہ روڈ ہے، اس کے نیچے ٹنل بھی ہے، تو 3 روڈ ایک جگہ پہ مکس ہو جاتے ہیں۔ تو ویز جو ہے وہ مجھے میرے ٹریک پہ رکھتا ہے، ویز بھٹکنے نہیں دیتا۔ بہت سی ایپلیکیشن ہے جو بھٹکا دیتی ہیں، جس طرح سے ایک ایپلیکیشن 2GIS ہے، اس کو میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہے اور وہ نمبر 1 ایپلیکیشن ہے 2GIS، کیونکہ وہ بلڈنگز کا نام بتاتی ہے، بلڈنگ کے اندر انٹرس ڈور کا بتاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ سب سے بہتر جو اس کا آپشن ہے وہ بلڈنگ کا جو نام بتاتی ہے، اس لیے اس کو لڑکے زیادہ یوز کرتے ہیں۔ تو جو ویز جو ہے وہ ہمیں جب سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی یہاں سے میں نے چلنا ہے تو لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے، ویز پہ ایزی ہوتا ہے مجھے کنفرم کرنا کہ میں نے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے۔
2GIS पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती थी, जिसकी वजह से मैंने 2GIS को यूज़ करना छोड़ा नहीं है, यूज़ उसको भी करता हूँ, क्योंकि मैंने बिल्डिंग्स के नाम भी कंफर्म करने होते हैं। बिल्डिंग्स के नाम कंफर्म करने के लिए 2GIS को यूज़ करना लाजमी है, लाजमी समझता हूँ मैं। 2GIS के बगैर जो है यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। और जो वेज है उसके मतलब मैं बता रहा था कि वो जब स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने चलना शुरू करना होता है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने चलना होता है, वो मुझे लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, चलने में इजी रहता है मेरे लिए वेज के ऊपर। 2GIS इसके बाद मैं बात करूँ अगर 2GIS की, तो इसके मतलब मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। 2GIS जो है वो नंबर 1 एप्लीकेशन मैं समझता हूँ, क्योंकि उसका जो लाइट है, लाइट मतलब कि जो रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, दिन की रोशनी में सूरज की लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो देखने में बहुत मुश्किल होता है मोबाइल की स्क्रीन पे, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो सूरज की रोशनी जब हमारे मोबाइल स्क्रीन पे पड़ती है तो वो वाज़ेह नज़र नहीं आता। लेकिन 2GIS हमें ग्रीन कलर का लाइन देता है, जो हमारा ट्रैवल लाइन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और वो रोशनी में भी हमें देखने में इजी लगता है। तो 2GIS सबसे बेहतर एप्लीकेशन मैं समझता हूँ, क्योंकि वो इस बिल्डिंग में अगर आर्डर लेके आया हूँ या यहाँ से मैंने पिकअप करना है, तो इस रेस्टोरेंट का वो इंट्रेंस डोर भी, बिल्डिंग का इंट्रेंस डोर भी बताती है, और इस बिल्डिंग का नाम क्या है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है, उस बिल्डिंग का नाम है क्या है। 2GIS पे सब कुछ मिलता है। 2GIS इस वजह से बहुत ज़्यादा इजी एप्लीकेशन है और नंबर 1 एप्लीकेशन है 2GIS। लेकिन उसमें ये है मुश्किल थोड़ी सी मुझे ये लगती है, 2GIS की एक खामी मुझे ये भी लगती है कि अगर ये समझ ले ऊपर ब्रिज वाला रोड, ये नीचे रोड टनल एक आ जाता है, 3 रोड एक जगह पे, जिस जगह पे 3 रोड मिक्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं, यानी ऊपर रोड ब्रिज वाला, नीचे ये रोड और इसके नीचे टनल वाला, समझ ले मिसाल के तौर पर ये 3 रोड हैं एक जगह पे इकट्ठे। तो 2GIS इस तरह से होता है कि ये ट्रैक बदल देती है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये ट्रैक बदल देती है, लेकिन सम टाइम ये हमारे ट्रैक के अंदर ही हमें ट्रैवल करवाती है, और जब ट्रैक से भटकता है बंदा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने 2GIS को छोड़ के वेज पे आया, क्योंकि वेज रास्ता हमारा जो ट्रैक है उससे नहीं भटकती, हमें अपने ट्रैक में ही लेके हमारी मंजिल तक जाती है, जहाँ हमारी लोकेशन है वहाँ तक हमारे ट्रैक के अंदर ही 2GIS रहता है, वेज रहता है। वेज 2GIS सम टाइम जो है वो हमारा जो ट्रैक है उसको बदल देती है। और वेज की भी एक थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, मुझे अभी याद आया है कि वेज अगर समझ लें कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और आगे जो है वो थोड़ा सा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक फंसी हुई है, गुजरने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी जब ट्रैफिक जैम होता है तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे ट्रैफिक स्लो होती है, टाइम लगता है, तो वेज हमें बिना बताए जो है वो हमारा रास्ता चेंज कर देता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि मैं जाना इसी रास्ते से चाहता हूँ क्योंकि ये नज़दीक है। 1 किलोमीटर का 5 किलोमीटर वाला बोलेगी कि 5 किलोमीटर ट्रैक पे आओ, तो बाज़ औक़ात जो है वो वेज इस तरह से करता है। नॉर्मली वेज हमारे ट्रैक पे ही हमें रखता है और वेज के ज़रिए अपनी लोकेशन पे पहुंचना भी इजी है। मेरे पास एक आर्डर है, उसको मैंने डिलीवर करना है, तो मैं नेविगेशन पे जाके मैप को यूज़ करूँगा। नेविगेशन यहाँ पे 3 मैप हैं इस वक्त जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। सबसे ऊपर वेज जो मैं ज़्यादा वो यूज़ करता हूँ, 2GIS। ये क्लियर क्यों नहीं आ रही यार? वेज जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फिर 2GIS और उसके नीचे है गूगल मैप। तो अभी मैं जो है ना वेज का जस्ट 1 करता हूँ क्लिक, तो ये वेज का मैप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी रिव्यू लोकेशन एक दफ़ा मैं लोकेशन इसकी देख लूँगा। ये देखें, ये उसकी लोकेशन शो हो रही है कि आपने इस तरह से ट्रैवल करना है। तो ये आगे मुझे ये जो रेड सिग्नल है इसका ये बता रहा है मुझे कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो
राउंड अबाउट है, फिर एक छोटा राउंड अबाउट है, बड़ा राउंड अबाउट है। तो ये सब कुछ मुझे वाज़ह तौर पे वेज़ बताता है और मेरे ट्रैक पर ही रखता है मुझे। तो 2GIS का जो है ना वो किस तरह से यूज़ है, नेविगेशन पे जाके मैं नेविगेशन पे जाके 2GIS को यूज़ करूँगा। क्लिक करते हैं नेविगेशन पे, ये नीचे 2GIS का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा जब तो मैप ओपन हो जाएगा 2GIS का। और ये देखें बिल्डिंग्स के नाम वगैरह सब कुछ ये शो होते हैं यहाँ पे कि कौन सी बिल्डिंग। सईद टावर से जो है ना मैंने ये ऑर्डर जाके पिकअप करना है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें बुर्ज अजीज़ी, ये तमाम जो होटल हैं, ये देखें होटल वोको और इसके साथ ये नसीमा टावर, यानी हर बिल्डिंग के जो इंट्रेंस डोर है वो भी शो होता है, और बिल्डिंग्स के नेम, टावर्स के नेम, होटल के नेम, यहाँ पे पिक्चर्स भी शो हो रही हैं मुझे। ये फिर टाइम भी बता रहा है 6 मिनट से 6 मिनट चाहिए, 2.7 किलोमीटर ट्रैवल है। तो यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये अपना ट्रैवल मैप ही यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ये वाज़ह तौर पे इस तरह से लाइनें जो हैं आपने किस तरफ से टर्न करना है वो यहाँ पे बताता है कि आपने दोनों राइट साइड वाली लाइंस पे ट्रैवल करना है और फिर आगे ट्रैवल करते जाना है। ये जो ग्रीन लाइंस है इस पे ट्रैवल करना होता है। ये जो ग्रीन लाइन शो है, इस वक्त मैं कस्टमर की लोकेशन पे हूँ, तो कस्टमर की लोकेशन पे ये देखे पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे उसकी बिल्डिंग शो हो रही है, बिल्डिंग 2 आपको नज़र आ रहा होगा अगर तो ये बिल्डिंग 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग 2 की समझ नहीं आ रही। तो मैं जल्दी से जो है वो अपना 2GIS यूज़ करूँगा, ओपन करूँगा, और यहाँ पे बिल्डिंग 2 देखेंगे। 2GIS को खोल लेते हैं, ओपन करते हैं। 2GIS खोल लिया, और यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स के नाम भी शो होते हैं। ये देखें ERA, तो ये वाला बिल्डिंग है। यहाँ पे बिल्डिंग का ऊपर नाम लिखा हुआ नज़र आ गया मुझे। तो इसका डोर इसी साइड पे वो आगे है इसका डोर। तो ये जो 2GIS है, ये देखें ये सारी बिल्डिंग्स के नेम्स बता देती है, ये सब बिल्डिंग्स के नाम बता देती है 2GIS जो है। हाँ जी, ये 2GIS जो है वो तमाम बिल्डिंग्स के नाम बता देती है। तो इस 2GIS का जो इसलिए मैं कहता हूँ 2GIS जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो अभी मैं यहाँ पे बाइक पार्किंग में लगा के कस्टमर को जल्दी आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको मैप की एप्लीकेशन बताई है, रोड मैप के मुतालिक बताया है इस वीडियो में, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत से लड़कों के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है। अगर ये वीडियो आप लोगों को भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें वीडियो को, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।